it's you, yeah. ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ دور دراز میں ایک گاؤں تھا جہاں وقت ہمیشہ ایک خاص گھڑی سے جڑا رہتا جو گاؤں کے مرکز میں نصب تھی۔ اسی گھڑی کی وجہ سے وہاں موسم تبدیل ہوتا۔ صدیوں سے یہ گھڑی صحیح وقت بتاتی آ رہی تھی، جس کا مطلب تھا کہ ان کے موسم اپنے صحیح وقت پر آ جا رہے ہیں۔ یہ لوگ بہت خوشی سے زندگی گزار رہے تھے۔ پھر ایک دن اچانک وہ گھڑی رک گئی اور وقت ٹھہر گیا۔ نہ دن تھا نہ رات، نہ گرمی تھی اور نہ سردی۔ عجیب سا موسم ہو گیا۔ سارے گاؤں کے لوگ خوف زدہ ہو گئے اور سارے گاؤں کے لوگ ایک بزرگ کے پاس جمع ہوئے اور ان سے وقت کے رکنے کی وجہ پوچھی۔ بزرگ نے انہیں بتایا، یہ کوئی عام بات نہیں ہے، ہمارا وقت اس سے پہلے کبھی نہیں رکا تھا۔ یہ گھڑی ہمیں صدیوں پہلے ایک نیک جادوگر، گاؤں والوں کو اس جادوگر کی مدد کرنے پڑتی تھی اور اس گھڑی سے ہمارے گاؤں کا موسم صحیح رہتا تھا۔ اور اس گھڑی کے ساتھ جادوگر نے ایک جادوئی وقت کی کتاب بھی دی تھی، اور مجھے لگتا ہے کہ اس وقت کی کتاب کو ظالم جادوگر سلطان اپنے قلعے میں اٹھا کر لے گیا ہے۔ یہ کتاب وہ طاقتور راز رکھتی ہے جس کے ذریعے کوئی بھی وقت کو کنٹرول کر سکتا ہے۔ گاؤں کے ایک نوجوان زید نے بزرگ بابا سے پوچھا، بابا، اگر یہ کتاب واپس نہ لائی گئی تو کیا ہوگا؟ یہ کتاب ایک تحفہ تھی اور ہمیں اپنے تحفے کی حفاظت کرنی چاہیے۔ اگر وہ کتاب واپس نہ لائی گئی تو ہمارا وقت درست نہیں ہوگا اور نہ ہی ہم کبھی دن کی روشنی دیکھ پائیں گے، اور ہر چیز سورج کی روشنی کے بغیر تباہ ہو جائے گی۔ ہمیں وہ ہر حال میں واپس لانی ہوگی۔ گاؤں والے جادوگر کے قلعے میں جانے سے ڈرتے تھے۔ کوئی بھی جادوگر کا مقابلہ نہیں کرنا چاہتا تھا۔ پھر زید نے کہا، جو کہ ایک بہت زیادہ بہادر نوجوان تھا، بوڑھے بابا، آپ مجھے جادوگر سلطان کے قلعے کا رستہ بتائیں۔ میں وہ کتاب واپس لا کر رہوں گا، چاہے کچھ بھی ہو جائے۔ شاباش، مجھے خوشی ہے میرے بچے کہ تم نے بہادری کا مظاہرہ کیا، مگر یاد رکھو یہ کام آسان نہیں ہوگا۔ تمہیں پہلے اپنی ماں سے اجازت لینی ہوگی، تو پھر چلے جانا، کیونکہ ماں کی دعاؤں میں بڑی طاقت ہوتی ہے، اور اگر اپنی ماں کی دعاؤں کے ساتھ رخصت ہوگے تو کامیابی تمہیں ضرور ملے گی۔ میں سمجھ گیا بوڑھے بابا۔ اس کے بعد بوڑھا زید کو رستہ بتاتا ہے کہ کیسے سلطان کے قلعے تک پہنچنا ہے، اور زید اپنی ماں کے پاس آتا ہے اور اس سے کہتا ہے، ماں، مجھے آپ کی اجازت چاہیے کہ میں گاؤں والوں کے لیے وقت کی کتاب واپس لا سکوں۔ آپ نے ہی تو مجھے سکھایا ہے کہ ہمیں دوسروں کی ہر ممکن مدد کرنی چاہیے، اسی لیے میں گاؤں والوں کی مدد کرنا چاہتا ہوں۔ جاؤ میرے بیٹے، تمہیں اجازت ہے اور میری دعائیں تمہارے ساتھ ہیں۔ اللہ تعالیٰ تمہیں کامیاب کرے، جاؤ۔ زید اندھیرے جنگل میں اپنی ماں سے رخصت لینے کے بعد تنہا چل رہا تھا۔ گھنی جھاڑیاں اور بلند درختوں کے بیچ سے گزرتے ہوئے اچانک اسے کسی کی مدھم سی آواز سنائی دی۔ وہ فوراً ہوشیار ہو گیا۔ یہ کون ہو سکتا ہے؟ کون میرا پیچھا کر رہا ہے؟ کہیں یہ جادوگر کی کوئی چال تو نہیں؟ لیکن جیسے ہی اس نے پیچھے مڑ کر دیکھا، اس سے دو جانے پہچانے چہرے نظر آئے، عامر اور عنایا، زید کے بچپن کے پکے دوست۔ عامر، عنایا، تم دونوں یہاں کیسے؟ بھائی، ہم بھی وہی سوال پوچھنے والے تھے کہ تم یہاں اکیلے کیا کر رہے ہو؟ ہم دونوں تمہاری مدد کرنے آئے ہیں۔ تم نے سوچا بھی کیسے کہ ہم تمہیں یہ کام اکیلے کرنے دیں گے؟ زید کو ایک زبردست خوشی محسوس ہوئی۔ وہ دو ایسے لوگ تھے جو ہمیشہ اس کی مدد کے لیے تیار رہتے تھے، چاہے حالات کتنی ہی مشکل کیوں نہ ہوں۔
वो हमेशा इसके साथ ही रहते थे। मुझे तुम दोनों को देखकर बहुत खुशी हुई, मगर मेरे दोस्तों ये सफ़र आसान नहीं होगा। तुम दोनों को मेरा साथ देने के लिए बहुत सारी मुश्किलात का सामना करना पड़ेगा। आसान? मेरे भाई, जब तुम साथ हो तो कभी कोई चीज़ आसान रही है क्या जो ये आसान होगा? हमें पता था कि तुम ये करने जा रही हो, इसलिए हमने ये फैसला किया कि हम दोनों खुद ही इस मुहिम में शामिल हो जाते हैं। जब तीनों दोस्त जंगल में एक बड़ी चट्टान पर बैठे थे तो आमिर ने संजीदगी से सवाल किया, ज़ैद, क्या तुम वाकई समझते हो कि जादूगर को शिकस्त देना मुमकिन है? दोस्तों, हम तीनों ने पहले भी तो कितनी मुश्किलात का सामना किया है और मुझे यकीन है कि अगर हम मिलकर काम करेंगे तो इस बार भी इंशाल्लाह कामयाब होंगे। बस हमें एक दूसरे का साथ देना होगा। ये सिर्फ जादूगर की बात नहीं है, हमें वक्त की किताब भी ढूंढनी होगी और मालूम करना होगा कि आखिर ये वक्त कैसे रुक गया। अगर हम नाकाम हो गए तो गांव हमेशा के लिए खतरे में रहेगा। इसीलिए तो हमें अपनी अक्ल, हिम्मत और दोस्ती पर भरोसा रखना होगा। आमिर, जो ज्यादा संजीदा बातों से गुरेज करता था, अचानक मुस्कुराकर मज़ाही अंदाज में बोला, हाँ ठीक है, लेकिन एक बात वाजिया कर लो, अगर कोई भूत नजर आया ना तो मैं सबसे पहले भागने वाला हूँ, पहले ही बता रहा हूँ। अगर तुम ऐसा करोगे तो फिर तुम्हें वापस खींचने के लिए हमें खास जादुई रस्सी रखनी होगी। जादुई रस्सी की क्या जरूरत है, हमारी दोस्ती काफी है इसको वापस खींचने के लिए, वो इसे कहीं नहीं जाने देगी। दोस्तों, अब हमें मजीद वक्त ज़ाय के बगैर आगे चलना होगा। इसके बाद तीनों ने अज़म किया कि वो जंगल में मौजूद मुश्किलात और जादूगर की चालों का मिलकर सामना करेंगे। तीनों दोस्त एक दूसरे का मजबूती से साथ देने का अज़म लेकर जंगल के अंदरूनी हिस्से की तरफ बढ़ने लगे, जहां जादूगर और वक़्त की किताब इनका इंतज़ार कर रही थी। वक़्त चलने के बाद इन्हें जादूगर का महल नजर आया। महल के दरवाजे के सामने पहुंचने पर उन्हें एक आवाज़ सुनाई दी, जानो तो खोलो, हर शख्स दो चेहरे रखता है, कौन सा चेहरा ज़्यादा अहम है और किससे हमारी पहचान होती है? इस सवाल से तीनों दोस्त गहरी सोच में पड़ गए। ये सवाल हमारी असलियत के बारे में है। हमारी पहचान के लिए दुनिया को दिखाया जाने वाला चेहरा भी ज़रूरी है, लेकिन जो चेहरा हम अपने अंदर छुपाए हुए हैं वो ज़्यादा अहम है और हमारी पहचान इसी से होती है। सही जवाब, तुम लोग अंदर जा सकते हो। इसके बाद दरवाज़ा खुल जाता है और तीनों दोस्त महल के अंदर चले जाते हैं। जैसे ही वो तीनों महल में दाखिल हुए, जादूगर ने इनके लिए एक जाल तैयार किया और वो तीनों अलग अलग कमरों में कैद हो गए। पहले अमार को धोखा दिया गया, इससे अपने कमरे की दीवारों से आवाज़ सुनाई दी, अगर तुम अपनी जान बचाने के लिए ज़ैद को कुर्बान करोगे तो मैं तुम्हें एक जादुई पत्ता दूंगा जिससे तुम जादूगर को हरा सकोगे और सबकी नज़रों में हीरो बन जाओगे। अगर तुम अपनी अक्ल से अपने दोस्तों को धोखा दोगी तो तुम आगे बढ़ सकोगी और तुम्हें रोशनी की एक गेंद मिलेगी जिससे तुम वक़्त की किताब को ढूंढ सकोगी और अकेली हीरो बन जाओगी। वैसे भी तुम अपने तमाम दोस्तों में सबसे ज़्यादा अक्लमंद हो। ज़ैद, तुम अपने दोस्तों में सबसे ज़्यादा ताकतवर हो। अगर तुम अपने दोस्तों को बुलाकर पीछे छोड़ दो और इनके बगैर आगे बढ़ जाओ तो मैं तुम्हें एक जादुई पत्थर दूंगा जिससे तुम जादूगर को हरा सकते हो और इसका वार इसी पर पलट सकती हो और फिर इसे हराकर तुम अकेले हीरो बन जाओगे। बताओ, क्या तुम्हें मंजूर है? मैं अपनी जान दे दूंगा, लेकिन कभी अपने दोस्तों को धोखा नहीं दे सकता। मुझे तुम्हारा इनाम नहीं चाहिए, तुम अपना इनाम अपने पास रखो। दोस्ती तो एतमाद और साथ देने का नाम है। मैं ऐसी जीत कभी नहीं चाहूँगी जो मेरे दोस्तों के बगैर हो। मेरे दोस्त मेरी मदद के लिए मेरे साथ आए थे, उन्होंने मेरी खातिर अपनी जानों को खतरे में डाला, तो क्या अब मैं इनके बगैर ही आगे बढ़ जाऊं? नहीं,
मुझे जादुई पत्थर नहीं चाहिए और ना ही मुझे अकेले हीरो बनना है। अगर तुम मेरी जान लेना चाहते हो तो ले लो, लेकिन मुझे अकेले ये जीत नहीं चाहिए। अपने दोस्तों को बगैर मैं आगे एक कदम भी नहीं बढ़ाऊंगा। अब बहुत ही ज़्यादा फैसला कुन घड़ी थी। हर किसी को फैसला करना था कि वो अकेले आगे बढ़ जाएं या अपने दोस्तों का साथ देकर अपनी दोस्ती को निभाएं। इन तीनों के सच्चे दिल और सच्ची दोस्ती की ताकत ने जादू को तोड़ दिया और वो तीनों आज़ाद हो गए और इन तीनों को वो जादुई चीज़ें इनाम के तौर पर मिल गईं। इसके बाद वो तीनों आखिरकार जादुई किताब तक पहुंच गए जो एक जादुई किले में बंद थी। जादूगर ने इनका रास्ता रोकने की कोशिश की। ये किताब सिर्फ मेरी है, मैं तुम्हें कभी इसे हासिल नहीं करने दूंगा। तुम बच्चों को लगता है कि तुम मुझसे लड़ सकते हो? कभी नहीं। मेरा मुकाबला किए बगैर तुम इस किताब तक कभी नहीं पहुंच सकते। वक्त कभी किसी की कैद में नहीं रह सकता। हम तुम्हें हराने आए हैं और तुम्हें हरा कर ही जाएंगे और वक्त की किताब को भी अपने साथ लेकर जाएंगे। जादूगर ने अपनी जादुई ताकत का इस्तेमाल करते हुए इन पर वार किया, मगर जैद ने जादुई पत्थर से इसका वार रोक दिया और अमार ने फ़ौरन जादुई पत्ता निकाला जो जादूगर के गिर्द लिपट गया और इससे जादूगर की ताकत ख़त्म हो गई और वो हमेशा के लिए ख़त्म हो गया। लेकिन जैसे ही जादूगर ख़त्म हुआ, हर तरफ अंधेरा छा गया। ये क्या हो गया? मुझे तो कुछ नज़र नहीं आ रहा। ये अंधेरा कैसा? क्या तुम लोगों को कुछ नज़र आ रहा है? अमार, तुम ठीक कह रहे हो, मुझे भी कुछ नज़र नहीं आ रहा। और इतने अंधेरे में अब हम वक्त की किताब को कैसे तलाश करेंगे? मुझसे तो एक कदम भी नहीं उठाया जा रहा और हमारे पास कोई ऐसी चीज़ भी नहीं है जिससे हम रोशनी कर सकें। अब हम क्या करेंगे? रुको ज़रा, अब भी कुछ है जो हम कर सकते हैं। अनाया ने रोशनी वाली गेंद निकाली और हर तरफ रोशनी हो गई। इसके बाद तीनों दोस्तों ने वक्त की किताब को किले से आज़ाद कराया और गांव वापस ले आए। गांव की घड़ी दोबारा चलने लगी और मौसम पहले जैसा हो गया। इसके बाद जैद ने अपनी माँ को आकर सब बताया। बेटा, तुम्हारी हिम्मत और बहादुरी पर मुझे फ़ख्र है। जीते रहो मेरे बेटे। इसके बाद सारे गांव वालों ने तीनों दोस्तों की कामयाबी का धूमधाम से जश्न मनाया। सच्ची दोस्ती की ताकत से किसी भी मुश्किल को ख़त्म किया जा सकता है। प्यारे बच्चों, अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती है तो उसे लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा ताकि मेरी हर वीडियो आप तक पहुंच सके। थैंक यू सो मच।